students, you are welcome to my YouTube channel. Today I will teach you lesson number 4, the cop and the anthem from an alien hand. First of all, I have written some important and difficult word for their meaning at the board. First word is here, situation, condition. Situation, condition, परिस्थिति, irony, satire, व्यंग, embarrassing, शर्मिंदा करना, अप्रोचिंग, कमिंग, आ रही है, रेस्टलेसली, अनइजीली, बेचैनी से, प्रिजन, जेल, कैद खाना, कॉप्स, द पुलिसमैन, पुलिस के आदमी, सौर, कोस्ट, किनारा या समुद्र का किनारा, सी सौर कहते हैं जैसे, स्पिरिट, कंसिडर, थिंक अबाउट, विचार करना, किसी चीज के बारे में विचार करना, एपियर्ड, वर, सीन, देखा जाना, फील्ड, सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना, इंडिफरेंट, बेपरवाह, इंडिफरेंट मीन्स बेपरवाह यानी परवाह न करना किसी चीज की, रिजॉल्व, डिसाइड्स, निश्चय करना, हर्ट, कॉज इंजरी, चोट पहुंचाना, वर्थलेस, यूजलेस, बेकार, पर्पज, एम, उद्देश्य, हैंगिंग अराउंड, खड़े हुए, हैंगिंग अराउंड, खड़े हुए या खड़ा होना. So these are the word meanings of this lesson. Now I will teach you the summary of this lesson, the cop and the anthem. मैं इस पाठ का पहले अंग्रेजी में सारांश समरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको इसकी हिंदी ट्रांसलेट बताऊंगा. बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और इंटरेस्टिंग भी है. देखिए, द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर वर देयर. बर्ड्स हैड बिगन टू फ्लाई साउथ. पीपल अर्ज टू वियर न्यू वार्म क्लोथ्स. द डेड लीव्स फेल एंड कवर्ड द ग्राउंड. दिस approaching winter made Soapy restless. He had no home and no warm clothes. He hoped to spend 3 months of winter in the prison of Blackwell's Island. He had been to prison several times with that purpose. Soapy's first plan was to have some good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money. A cop would be called and he would be taken to a judge. The judge would send him to prison for 3 months. He entered the restaurant. Unluckily, the head waiter saw his broken old shoes while he was entering the restaurant. He quickly sent him out. There was a shop with a wide glass window. Soapy took up a big stone and broke the glass. People along with a cop came running. Soapy admitted breaking the glass, but the cop thought that the men who break windows do not stop there to talk to cops. They run as fast as they can. Thus, this plan of reaching the prison also failed. Soapy entered another restaurant where he was able to get good food. Good food. After that, he clearly told that he had no money. He himself requested the waiter to call the cop, but 2 waiters threw him out on the hard street outside. Thus, his first plan to reach the prison failed again.
He came to a cop standing in front of a big theater. He began to shout as if he had drunk too much. The cop said to someone standing near him, standing near him, "It's one of those college boys. He won't hurt anything. He have orders to let them shout." In desperation, Sophie took away the umbrella of a man buying a new newspaper. The man followed Sophie. Sophie asked him to call the cop standing at the corner. It turned out that man himself had stolen the umbrella, so he didn't call the cop. Now Sophie gave up all hopes of being arrested that day. He began to move toward Madison Square. He was going home, although it was only a seat in the park. At a quiet corner, he stopped. Here was his old childhood home. Sweet music came to Sophie's ears and seemed to hold him there. He thought of his childhood days. There were friends and clean thoughts and clean clothes. He realized how he had fallen. He saw the wasted time. He saw the wasted time, his wrong desires, his dead hopes, and the lost power of his mind. He decided to change his life. He wanted to make a man of himself again. He wanted to make a man himself again. He would again find his old purpose in life. The sweet music had changed him. He decided to find work the very next day. Just then, Sophie felt a cop's hand on his arm. He asked Sophie what he was doing there. Sophie began to argue with him. The cop took Sophie with him. Next morning, the judge sentenced him to 3 months prison on Blackwell's Island. तो बच्चों, ये इसका हिंदी समरी है। अब देखिए, इसमें ये जो समरी है, इसमें एक व्यक्ति जो है उसके पास ना घर होता है, ना गर्म कपड़े होते हैं, और संकेत आता है विंटर सीजन का। जैसे पतझड़ शुरू हो जाता है, पक्षी दक्षिण की ओर उड़ना प्रारंभ कर देते हैं, प्रस्थान कर देते हैं। तो इससे लगता है कि जाड़ा प्रारंभ हो गया है, होने वाला है। और उस व्यक्ति के पास, जो सोफी नाम का व्यक्ति है, उसके पास ना गर्म कपड़े हैं, ना रहने के लिए घर है। तो वो चाहता है कि वो 3 महीने जो है ब्लैकवेल्स आइलैंड में जेल में रहे और वहाँ कम से कम वह अपना जाड़ों का समय काट सके। तो उसके लिए वो अपराध करना शुरू करता है कि उसको जेल हो जाए 3 महीने की। तो देखिए कैसे अपराध शुरू करता है वो। सर्दी आने वाली थी, पक्षी दक्षिण की तरफ उड़ने लगे थे, लोग नए गर्म कपड़े
पहनना चाह रहे थे, सूखी पत्तियों ने धरती पर गिरना शुरू कर दिया। ये संकेत हैं जाड़ा आने की, सर्दी आने की। इस आती हुई सर्दी ने सोफी को बेचैन कर दिया। अब बेचैन क्यों था वो? क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं थे। उसके पास ना तो कोई घर था और ना गर्म कपड़े। उसे आशा थी कि सर्दियों के 3 महीने वो ब्लैक वेल के टापू की जेल में गुजारेगा, जैसा वह कई सालों से कर रहा था। वो बार बार जब जाड़ा आता था तो कोई ना कोई अपराध करके वहाँ ब्लैकवेल के टापू में चला जाता था, जेल में। सोफी की योजना किसी बढ़िया होटल में अच्छा भोजन करने की थी। फिर वह कहेगा कि उसके पास पैसे नहीं है। सिपाही को बुलाया जाएगा और उससे जज के पास ले जाया जाएगा। जज उससे 3 महीने के लिए जेल भेज देगा। देखिए, कहानी इंटरेस्टिंग है। तो ऐसी योजना बनाई उसने। अब जैसे ही वह रेस्टोरेंट में या होटल में, अच्छे होटल में प्रवेश करता है, वह एक अच्छे रेस्तरां में गया। दुर्भाग्य से हेड वेटर जो था वहाँ का, उसने उसके रेस्तरां में घूमते हुए उसके टूटे पुराने जूतों को देख लिया। उसने सोफी को तुरंत ही बाहर कर दिया। आगे चलकर उससे शीशे की खिड़की वाली एक दुकान मिली। सोफी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और शीशे को तोड़ दिया। लोगों के साथ एक सिपाही भी वहां पहुंचा। सोफी ने शीशा तोड़ने की बात स्वीकार कर ली। सिपाही ने सोचा कि जो आदमी खिड़कियां तोड़ते हैं वे पुलिस से बात करने के लिए वहां रुके नहीं रहते हैं। अगर इसने शीशा तोड़ा होता तो यह चला जाता, भाग जाता। ये तो स्वीकार कर रहा है, ऐसा पुलिस वाले ने सोचा। जितनी तेजी से संभव हो वे वहां से भाग जाते हैं। इस प्रकार जेल पहुंचने का उसका यह प्रयास भी असफल रहा। अब पुलिस ने सोचा, यार ये क्या, अगर इसने तोड़ा होता तो ये यहां से भाग जाता, अतः उसको छोड़ दिया गया। तो ये भी उसकी योजना जो थी फेल हो गई, असफल रही। सोफी दूसरे रेस्तरां में पहुंचा, दूसरे होटल में पहुंचा जहां उससे भोजन मिल गया। उसके बाद उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। उसने खुद ही वेटर से सिपाही को बुलाने के लिए कहा, परंतु 2 वेटर ने उससे बाहर सड़क पर पटक दिया। उसने कहा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम क्यों बैठे यहाँ, खाना क्यों खाया? मार उसको वहाँ सड़क पर पटक दिया। तो फिर भी पुलिस वाले को नहीं बुलाया उन लोगों ने। इस प्रकार जेल पहुंचने की उसकी योजना फिर से बेकार हो गई। चलते चलते सोफी ने एक ऐसे सिपाही के पास आया जो एक विशाल थिएटर के सामने खड़ा था। वह जोर जोर से ऐसे चीखने लगा जैसे वह नशे में हो। सिपाही ने अपने पास में खड़े एक व्यक्ति को कहा, अरे यह कॉलेज के उन लड़कों में से है, यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमें आज्ञा है कि इन्हें चीखने दें। सोफी ने आगे चलकर अखबार खरीदते एक आदमी की छतरी उठा ली। वह आदमी सोफी के पीछे पीछे आया। सोफी ने उससे कहा कि वह कोने में खड़े उस सिपाही को बुला ले। पता लगा कि वह व्यक्ति स्वयं उस छतरी को चुरा कर लाया था। अब जो चुरा के लाया होगा वो क्यों कहेगा भाई, इसलिए उसने सिपाही को नहीं बुलाया। अब उस दिन गिरफ्तार होने की सोफी की सारी आशाओं पर पानी फिर चुका था। वह मेडिसन स्क्वायर की ओर बढ़ चला, जहां उसका घर पार्क में एक सीट मात्र था। एक शांत कोने तक पहुंचकर वह रुक गया। इस जगह पर उसका बचपन का पुराना घर था। उसके कानों में मधुर संगीत की आवाज आ रही थी, जिसने सोफी को वहीं रोक दिया। उसे अपने बचपन के दिनों का विचार आया। वहां पर मित्र थे और स्वच्छ विचार, स्वच्छ कपड़े थे। उसने सोचा कि वह कितना गिर चुका है। उसने अपने
बर्बाद हुए वक्त को, अपनी मृत आशाओं को और नष्ट हो चुकी अपनी मानसिक शक्ति को देखा, विचार किया है, और स्वयं घृणा आने लगी उसको अपने पर। उसने अपने जीवन को बदलने के लिए संघर्ष करने का निश्चय किया। उसने कहा यार ये बेकार है, मैंने अपना जीवन बेकार कर दिया, अब मुझे एक अच्छा आदमी बनना चाहिए। वह फिर से अपने आप को एक इंसान बनाना चाहता था, अच्छा आदमी बनाना चाहता था। जीवन में वह अपने पुराने उद्देश्य को फिर से पाना चाहता था। मधुर संगीत ने उससे बदल दिया था। उसने निश्चय किया कि वह अगले ही दिन काम की तलाश करेगा। तभी सोफी के बाजू पर एक सिपाही ने अपना हाथ रखा उसके कंधे पर। उसने सोफी से पूछा कि वह वहाँ क्या कर रहा था। सोफी उससे बहस करने लगा। सिपाही सोफी को अपने साथ ले गया। अगली सुबह जज ने उससे ब्लैक बेल्ट टापू में 3 महीने की कैद की सजा सुना दी। तो बच्चों, यह है इसकी हिंदी समरी। अब देखिए, आदमी अपने को अच्छा बनाने के लिए जब विचार कर ही रहा था, पहले तो वो अपराध करना शुरू किया उसने कि मैं भाई 3 महीने जेल में रहूं, कम से कम मैं ये जो बाहरी समस्याएं हैं, वातावरण है जो ठंडा वातावरण है, इससे मैं वहाँ अपने को सुरक्षित रख सकूं, क्योंकि उसके पास घर भी नहीं था। तो जब उसके मन में एक अच्छा विचार आया तो तुरंत पुलिस वाला आ गया और पुलिस वाले ने उसको पकड़ा और उसको अरेस्ट कर दिया। जज ने पुलिस ने अरेस्ट किया और जज ने उसको जेल कर दी। अर्थात कहने का मतलब यह है, जब आदमी अच्छा सोचता है तो उसके बुरे दिन आ जाते हैं। जब वो बुरा सोचता है, बुरे दिनों की बात सोचता है, तो उस समय उसको कोई अरेस्ट नहीं करता है पुलिस वाला, ना जेल होती है। तो यह है इसका सारांश। अब मैं अगली वीडियो में मैं बच्चों इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिखाऊंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।